The recording has started and I'm going to start the class. Okay, so once again, good morning everyone and welcome to Business Communication and Presentation Skills. Okay? Today it's going to be introductory session. If there is any problem, you can chat and tell me that yes, there is some problem and you cannot hear me or whatever. Is it okay if I continue in English? Is it okay if I continue in English? Okay, just in case if anybody is not able to follow what I'm saying, you can definitely write it in the chat box or you can unmute yourself and tell, ma'am, samajh mein nahi aaya. Okay, don't ask me to speak in Gujarati, which is not going to be possible. Okay, so today what we are going to do is we are going to understand the syllabus of business communication and presentation skills. Many of you would be having question, do we have a textbook? Yes, we have a textbook for business communication and presentation skills. However, how will it reach you? That is a big question. It's going to be a big question mark that how it is going to reach you. This is the book. You don't have to purchase it right now unless and until we tell you. Okay, this is the book. This book has got everything, your lab, your chapters, everything is in this book. But at present, because the classes are online, you don't have to purchase it. It is going to be my responsibility that you get everything. Okay, just in case if you don't get everything, you are free to talk to me. First of all, take down my number, my mobile number and WhatsApp number. I'm going to type it here. This is my mobile number and you can note it down, and my WhatsApp number. Now, I hope you have written it down. Please, I don't want to talk to the walls, so please show me your faces. Yeah. The reason why I have given you this number is just in case, if you are not able to attend my class, then you can WhatsApp me or you can call me and tell that today I won't be able to attend. I mean, you won't be able to attend my class. So in that way, I can take care of your attendance too. But you give me a valid reason. But don't kill anyone. Huh? Don't kill your dada. Don't kill your dadi. Don't kill the person who is already no more in this world. Okay? तो वो सब करना मत, किसी को मार मत डालना और बोलना मत कि ऐसा हुआ, और किसी को बीमार भी मत गिराना, और सच ही बोलना, मेरे सामने हमेशा सच बोलना जरूरी है. I know you people are not here in the college, otherwise you would have definitely got कि I don't like people lying. पकड़ लेती हूँ, ठीक है. Anybody would like to know anything about me before I go into the syllabus? आप मेरे बारे में अगर कुछ जानना चाहते हैं तो आप या तो चैट में पूछ सकते हैं या तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं. मैंने किसी को लॉक नहीं किया है. यू कैन चैट, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, एवरीथिंग. ब्रिज कोर्स खत्म. अगर किसी को मेरे बारे में जानना है, यू वांट टू नो अबाउट मी, तो ही मैं अपने बारे में बोलूंगी, नहीं तो फिर हम सीधा क्लास में. You can unmute and ask, or you can write it in the chat box. What is your qualification? Difficult है ना? हाँ, my qualification is mine is masters in computer science. I am a master's in computer science and I have done it from US, और मैं business communication पढ़ा रही हूँ. 2004 में मैंने वैसे कंप्यूटर छोड़ा है, प्रोग्रामिंग छोड़ा है. आई एम एक्सप्लोरिंग मेनी थिंग्स. एजुकेशन वाइज वो है, और कोई क्वालिफिकेशन जानना है तो भी पूछ सकते हैं, बहुत सारे हैं क्वालिफिकेशंस. You can ask any personal question. I will not be. Can you name the book you have written? Oh, you know that I have written a book. बहुत सारे लिखे हैं.
ये बुक के पीछे, अगर आप बुक खरीदोगे, बुक के पीछे आपको मिलेगा. इट्स ऑल टेक्निकल बुक्स. आई थिंक आई हैव रिटन 1 2 3 4 5 बुक्स. 5 टेक्निकल बुक्स आई हैव रिटन. उसमें से लेटेस्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स, फिर कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर BSc. एक और लिखा हुआ है, एक क्या नाम है, हाँ, a learner's book for all ages, because I wrote this book because it is a bridge course book. क्योंकि बच्चे आते हैं, हमें अंग्रेजी बोलना नहीं आता है, तो मैंने उसके लिए एक बुक बनाई है. पर मुझे अच्छा नहीं लगता है कि वो बुक पढ़ के आप अंग्रेजी सीखें. अंग्रेजी बोलना है तो बोल के ही सीखना है. और कोई क्वेश्चन? व्हाट इज योर हॉबी? मेरा इंस्टाग्राम पेज है. आप मेरे नाम से मिल जाएगा, रोजली के नाम से मिल जाएगा. मेरा हॉबी, आई एम वेरी आर्टिस्टिक. तो मेरा हॉबी ऑलमोस्ट एवरी ईयर चेंज होता जाता है. लास्ट ईयर मेरा हॉबी था हैंडमेड इयररिंग्स बनाना. बनाती थी और उसको सेल करती थी और मैं उसको चैरिटी में देती थी. दैट वाज माय हॉबी. अभी जो हॉबी है, यूट्यूब में आप लोग के लिए वीडियो अपलोड करना है, वो अभी हॉबी है. अब वो कब बंद होगा मुझे नहीं पता. आई कीप ऑन चेंजिंग. Are there any digital version of your book? Actually, I cannot share the digital version of my book. The reason is क्या बोलते हैं उसको, पब्लिशर परमिशन नहीं दे रहा है. But I will share as much as I can because I am the author. I can share as much as I can without asking the publisher. वो मैं आपको दूंगी, don't worry. Chapter wise मैं आपको मैं वंचित नहीं रखूंगी knowledge से. So don't worry about that. So I cannot give you the PDF or Word format. Any other question? Okay, so I don't see any more questions popping in. So we will start with our ये आज का जो लेक्चर है मैं अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर दूंगी. एंड यू कैन, आई होप यू नो व्हाट इज वेयर इज, आई होप एवरीबडी इज सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल. अगर नहीं चैनल सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए आज कर लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे मैंने वैसे चैप्टर 7 टू चैप्टर 13 तक तो ऑलरेडी बना ही चुकी हूँ. उसमें एक्सरसाइजेस वगैरह हैं, तो एक्सरसाइज आपको वहीं पे करने होंगे, तो आप सब्सक्राइब कर लेना. चैनल में सिलेबस के अलावा भी लाइफ स्किल्स का भी बहुत सारे मैंने डाले हुए हैं. क्या करें, लॉकडाउन में बैठ के करें क्या, तो यही किया है काम. और आप लोग थे ही नहीं. व्हाट इज माय चैनल नेम? माय चैनल्स नेम इज BUSI. दिस इज़ माई चैनल्स नेम, बिजनेस कम्युनिकेशन एंड लाइफ स्किल्स, जिसमें आपको मेरे बाल थोड़े लंबे दिखाई देंगे. The link asks for password in the Android, and so I had to attend using laptop. Can you share the password for this meeting, please? I think it is 1 2 3 4 5. ऐसा ही कुछ है. What is the password? 1 2 3 4 5. I don't remember my password. Anybody remembers? टाइप कर सकते हो. 1 2 3 4 5. Yes, that is the password. Okay. Thank you. I think Yuvraj, you got the password 1 2 3 4 5. If you can. ठीक है. All right. Thank you. So I'm going to share the screen. Share screen. Okay, so I think everybody can see the screen where it is written teaching schemes and detailed syllabus. Hardik, can you see? Just thumbs up. Okay, so if Hardik can see and Rohit, can you see? Thumbs up if you can see. Okay, fine. So this is what we are going to understand today, and definitely I'm going to put this on my channel
सो अगर कोई मिस हो चुका है तो आप किसी को देखना चाहते हो, आज नहीं तो कल, नहीं तो बाद में भी देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। ये टीचिंग स्कीम एंड डिटेल्ड सिलेबस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन, क्योंकि इसके मुताबिक हम जाने वाले हैं। अब ये जो टीचिंग स्कीम हमने बनाया है वो टीचिंग स्कीम ऑफलाइन मोड पे बनाया है हमारे लिए भी। अभी क्योंकि लॉकडाउन मार्च में शुरू हुआ था तो हम लोगों ने आधा सिलेबस तो कंप्लीट कर दिया था, उसके बाद हमारा लॉकडाउन शुरू हुआ था। तो भले ही ऑफलाइन मोड में है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि मिड सेम कैसे होगा, तो वो सब सवाल हमारे दिमाग में भी है। जैसे जैसे हमें बताया जाएगा वैसे वैसे हम आपसे शेयर करेंगे, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट एग्जामिनेशन, इट इज न्यू फॉर अस एंड इट इज न्यू फॉर यू। So the name of our subject is, everybody, business communication and presentation skills, ठीक है। अब ये कब आपको मिलेगा? ये आपको मिलेगा सेमेस्टर, मुझे, हाँ ऐसे मत करिएगा नहीं तो फिर मुझे रिस्ट्रिक्शन डालना पड़ेगा, ठीक है, और मुझे पता चल जाता है कौन करता है। नेक्स्ट, डोंट फोर्स मी टू डू सर्टेन थिंग्स। येलो मीटिंग ऑप्शन, थैंक यू। हाँ, मैंने आपको सब छूट दिया हुआ है, पर छूट का मिस यूज मत करिए। सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2, जैसे कि आपको अभी सेमेस्टर 1 में आईटी को सेमेस्टर 1 में लिया है तो आपको सेमेस्टर 2 में नहीं आएगा। सेमेस्टर 2 में आपका दूसरा सब्जेक्ट होगा। सेमेस्टर 1 आप लोगों को पता ही होगा कि सेमेस्टर 1 और 2 में कॉमन सब्जेक्ट आएंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट कोड कहीं पे लिखना हो तो लिख लो। सब्जेक्ट कोड फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल इज CC106, उसके बाद एक डैश है और N। इसके अंदर आपके बेसिकली सेमेस्टर 1 के अंदर एंट्री मैथमेटिक्स होगी। इसके अंदर आपका 70 मार्क्स का ओवरऑल एग्जाम, 30 मार्क्स का रिसेट और सीआई होगा। तो सीआई जो है उसमें कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन करने मार्क्स के लिए वो आपके इंटरनल मार्क्स के लिए जाएंगे। 30 में से आपको 12 मार्क्स लाने जरूरी। गुड गुड गुड। 30 में से 12 मार्क्स का पासिंग रेशियो वो आपको जरूरी है। प्लस आपकी फाइनल एग्जाम 20 मार्क्स के 28 मार्क्स आपको लाने जरूरी है। तो दोनों एग्जाम में पास हो then you can prove your semester of engineering mathematics subject. Okay. I'm sorry, I had to interrupt certain things that was happening on the screen. सब्जेक्ट कोड आपने लिख लिया, सबने लिख लिया, सब्जेक्ट कोड CC106-N। अभी यहाँ पे टीचिंग स्कीम, क्रेडिट एंड आवर्स, ये जो टीचिंग स्कीम है यहाँ पे मैं जो हाईलाइट करते जा रही हूँ उसके ऊपर आपको देखना है। टीचिंग स्कीम L क्या हो सकता है? यू कैन चैट एंड टेल मी। L का मतलब क्या होगा? लेक्चर। वेरी गुड। L का मतलब है लेक्चर। लेक्चर कितने घंटे का है? 2 घंटे का, 2 आवर्स लेक्चर। उसके बाद T है। अब ये T क्या हो सकता है? गेस वर्क। नहीं, थियरी। T का मतलब है ट्यूटोरियल, जो हमारे में नहीं है। ये ट्यूटोरियल आपको मैथमेटिक्स में मिलेगा, तो हमें ट्यूटोरियल नहीं है। अब P क्या होगा? सिंपल, प्रैक्टिकल। अच्छा, देख लेना, प्रैक्टिकल 2 घंटे का है, लेक्चर 2 घंटे का, प्रैक्टिकल 2 घंटे का, टोटल 4 आवर्स। और इसका क्रेडिट जो है वो 3 क्रेडिट है। आपके फर्स्ट सेमेस्टर में 3 क्रेडिट होंगे, 5 क्रेडिट होंगे, आई डोंट नो अबाउट 4 क्रेडिट, बट आपको ऐसे अलग अलग क्रेडिट दिखाई देगा। तो इसका मतलब 3 क्रेडिट का ये कोर्स है। अभी उसके बाजू में इवैल्यूएशन स्कीम, evaluation scheme, evaluations, yes,
द वेटेज इस जैसे जैसे आप अभी ग्रेजुएशन में आए हो, तो ग्रेजुएशन में हर सब्जेक्ट को क्रेडिट दिया जाता है कुछ, और ग्रेजुएशन में इतने क्रेडिट होना, सपोज 50 क्रेडिट, मैं सपोज बोल रही हूँ, सपोज एट द एंड ऑफ योर 8th सेमेस्टर आपको 50 क्रेडिट्स की जरूरत है। सो वो 50 क्रेडिट्स अगर आपने कंप्लीट किया है तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है। दैट इज व्हाट दिस मीनिंग ऑफ द क्रेडिट इज। आई होप किसने पूछा IT035, आपने नाम नहीं लिखा है, आपको पता है ना, रीनेम कर सकते हो आप, अपना नाम रीनेम कर सकते हो। 3 डॉट होगा वहां पे, राइट क्लिक करोगे तो, राइट क्लिक या तो क्लिक करोगे तो रीनेम का ऑप्शन आएगा। ओके, इवैल्यूएशन स्कीम, हम आपको कैसे इवैल्यूएट करेंगे? सबसे पहले होता है थियोरी, उसके बाद मिड सेम, उसके बाद CIA। ये सब निखिल सर ने आपको समझाया था, फिर से मैं आपको समझा रही हूँ। आपका जो थियोरी एग्जामिनेशन है 3 घंटे का होगा, वो है 70 मार्क्स का। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये है ऑफलाइन मोड एग्जामिनेशन। फाइनल एग्जामिनेशन अगर ऑनलाइन होगा तो उसके अलग तरीका होगा, उसका अलग तरीका होगा, और वो हम आपको समझा देंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। यहाँ पे मिड सेम लिखा हुआ है 30 मार्क्स। अगेन दिस इज ऑफलाइन। ऑनलाइन कैसे लिया जाएगा जब हमको पता चलेगा तो हम आपको बता दिया जाएगा। हर्षद मेहता, क्लास अभी शुरू ही हुआ है, आपको वेकेशन, आपका क्लास बहुत लेट शुरू हुआ है तो वेकेशन की आशा लेके बैठे हैं तो नहीं मिलेगा आपको। सिर्फ वो जो दिवाली का जो 4 या 5 दिन है वो छुट्टी मिलेगी, बाद में नहीं तो फिर आपका पूरा सेमेस्टर वेस्ट किया जाएगा। हमें सेमेस्टर वेस्ट करने का कोई इरादा नहीं है। सो वेकेशन नाम की चीज आपको नहीं मिलेगी, आपको छुट्टियां मिलेगी जो 4 या 5। Harshad, I want you to focus on what I'm saying. Okay? अगर आप पढ़ना नहीं चाहते, आप वेकेशन लेना चाहते हो, आप पूरा दिन वेकेशन लेके जाओ। लॉकडाउन में पूरा वेकेशन था, ठीक है? देखो बच्चों, अगर पढ़ना नहीं चाहते हैं तो मत आके डिस्टर्ब करो। पूरा लॉकडाउन मिला था आपको। ओके, सो मिड सेम होगा 30 मार्क्स। CIA इज कंटिन्यूएशन इवैल्यूएशन असेसमेंट। इसमें आपका अटेंडेंस होगा, इसमें आपका असाइनमेंट होगा। मैं इसको फ्री मार्क बोलती हूँ। फ्री मार्क इसलिए कि आपको, अगर आपका अटेंडेंस अच्छा है, अगर आपको जो असाइनमेंट दिया गया वो आपने सही टाइम पे किया है, और सच भी बोले हैं। अगर इंसान है, इंसान से गलती हो सकती है, कभी इधर उधर हो सकता है, कुछ हुआ होगा, पर जो भी है वो सच बोले। तो आप असाइनमेंट कैसे करते हैं? कॉपी करते हैं तो मुझे पता चल जाता है, खुद करते हैं तो मुझे पता चल जाता है। तो अगर आपने ये सब कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, मतलब कंटिन्यूअस आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, कंटिन्यूअसली आपने किया है, सपोज 10 असाइनमेंट है, अगर 10 असाइनमेंट आपने टाइम पे किया है तो आपको यहाँ पे CIA में 20 आउट ऑफ 20 मिलेगा। I won't answer certain question about mid-sem. प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो 30 मार्क्स का है वो आपके फाइनल एग्जामिनेशन के बाद एक्सटर्नल के साथ आपका होगा। इंटरनल भी होगा, एक्सटर्नल भी होगा, और ये 30 मार्क्स आपके फाइनल एग्जामिनेशन के बाद आपको टाइम टेबल दिया जाता है, और उस टाइम टेबल के मुताबिक आपको प्रैक्टिकल्स देने होते हैं। प्रैक्टिकल में एक्सटर्नल वाइवा पूछ सकते हैं, आपके सब्जेक्ट रिलेटेड वाइवा, आपके असाइनमेंट रिलेटेड वाइवा, आपके प्रैक्टिकल रिलेटेड वाइवा। ऐसे करते करते टोटल 150 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट पेपर होता है। उसमें फ्री मार्क कितना है? 20 मार्क्स जो आपको फ्री में मिल सकता है, और काफी बच्चे मेरे क्लास में 20 मार्क्स ले चुके हैं, बिकॉज टाइम टू टाइम आपको करना है, दैट इज इट। ठीक है? एनी क्वेश्चन ऑन द टीचिंग स्कीम, क्रेडिट ऑन एंड आवर्स है तो अभी पूछ लीजिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ रही हूँ डिटेल्ड सिलेबस में। ओके, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो जैसे मैंने बोला था कि मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी यूट्यूब चैनल में। गिव मी 1 डे, ओके?
ओके, सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन। इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन में आप क्या सीखेंगे? अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन। कोई ऐसा है जो कम्युनिकेट नहीं कर पाता? एवरीबडी कम्युनिकेट्स, राइट? तो कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन, हर बच्चा, हर कोई कम्युनिकेशन करता है, पर उसको समझना भी जरूरी है। दूसरा है कम्युनिकेशन साइकिल। हमने व्हील ऑफ लाइफ किया था। अगर आप लोग प्रेजेंट थे तो मैंने मेरा सबसे पहले ब्रिज कोर्स में मेरे से ही शुरू किया था। उसमें कम्युनिकेशन साइकिल लिया था, जिसमें मैंने बोला था साइकिल मतलब एक राउंड होता है। साइकिल का व्हील जो होता है वो राउंड होता है। तो कम्युनिकेशन इज ऑल्सो अ साइकिल। उसके बारे में हम समझेंगे। यस, पिज्जा। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। बैरियर मतलब जैसे कि सपोज यहाँ पे कुछ रुकावटें होती है, उसको बैरियर होता है। बहुत सारे बैरियर्स होते हैं। लैंग्वेज बैरियर होता है, शाइनेस होता है, कल्चरल बैरियर्स होता है। वो सब हम यहाँ पे सीखने वाले। चैप्टर 1 बहुत लंबा है, तो चैप्टर 1 अगर आपने चैप्टर 1 समझ लिया तो बाकी चैप्टर समझना इजी रहेगा। इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन एट वर्क प्लेस। हाँ, यहाँ पे हम अंग्रेजी नहीं सिखाते, ग्रामर नहीं सिखाते, और मैं पब्लिकली बोल रही हूँ, मुझे अंग्रेजी नहीं आती और मुझे ग्रामर भी नहीं आता है, बट आई कैन स्पीक। ओके, आई कैन स्पीक, आई कैन टीच. So we are not going to focus on grammar. We are not going to focus on English, but it's communication in English. Remember, it's communication in English. So that is chapter 1. Chapter 2, एम्प्लॉयमेंट कम्युनिकेशन पार्ट 1। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, इसके 2 भाग होंगे या तो एक से ज्यादा भाग होगा। एम्प्लॉयमेंट कम्युनिकेशन में आप ग्रुप डिस्कशन, जो आप अंग्रेजी 12th तक पढ़े हो, आप लोगों को हमसे ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा अंग्रेजी के ग्रामर आपको आता है, इसलिए हम ग्रामर में कभी नहीं जाएंगे। यू वॉन्ट टू मेक मिस्टेक, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कभी ये नहीं बोलूंगी आप गलती कर रहे हो, मैं तो बोलूंगी गलती करो। लर्न फ्रॉम द मिस्टेक एंड देन मूव अहेड, बिकॉज इफ यू डोंट मेक मिस्टेक, हमारी जरूरत ही नहीं है। और गलती अभी करो, मेक मिस्टेक राइट नाउ, नॉट इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो वो भारी पड़ेगा। अभी गलती करेंगे तो हम आपको सुधार, आई मीन इट कैन बी करेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो बिजनेस कम्युनिकेशन, नाम से ही आप समझ गए होंगे कि बिजनेस कम्युनिकेशन मतलब इट इज गोइंग टू बी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल वे ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो वैसे ही टॉपिक यहाँ पे होंगे। ग्रुप डिस्कशन। अब आप बोलेंगे ग्रुप डिस्कशन अभी से सीख के क्या करना है? वो तो 7 सेमेस्टर में काम आएगा, पर काम तो आएगा, क्योंकि 7 सेमेस्टर में हम ग्रुप डिस्कशन सिखाने नहीं बैठेंगे। वो 7 सेमेस्टर में आपको सीधा ग्रुप डिस्कशन के अंदर हम लेके जाएंगे। डूज एंड डोंट्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन। फिर टाइप्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन, अलग अलग प्रकार के ग्रुप डिस्कशंस होते हैं। राउंड टेबल में भी होता है, इम्प्रॉम्प्टू भी होता है, अलग अलग प्रकार के ग्रुप डिस्कशंस होते हैं। फिर डिफरेंस बिटवीन डिबेट एंड ग्रुप डिस्कशन। बहुत सारे लोगों को जानना, आई मीन इट इज इम्पोर्टेंट टू लर्न एंड टू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिबेट एंड ग्रुप डिस्कशन। इट हैज गॉट अ बिग डिफरेंस। एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फीडबैक। सिग्निफिकेंस ऑफ फीडबैक मतलब अभी ये जो चैट में आप लिख रहे हो, या तो मैं आपको लिख रही हूँ, या तो मैंने किसी को अभी स्टॉप किया, ऑल दोज थिंग्स आर फीडबैक। आप सिर ऐसे हिला रहे हो, दैट इज अ फीडबैक। आप नोट डाउन कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो फीडबैक। बहुत सारे फीडबैक हैं। वी विल नो द इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक। जैसे मैं कभी कभी बोलती हूँ ना, अपना वीडियो ऑन रखो, दैट इज ऑल्सो अ फीडबैक। आपका चेहरा देख के मुझे पता चल जाता है कि यस यू हैव अंडरस्टूड और वेदर यू हैव नॉट अंडरस्टूड। सो आई थिंक चैप्टर 1 चैप्टर 2 इज क्लियर। अगर नहीं क्लियर है, मैम डिबेट इज सिमिलर, अरे बाबा हम सीखेंगे। डिबेट इज सिमिलर टू पॉलिटिकल स्पीच, क्वेश्चन मार्क। आई विल आंसर दैट क्वेश्चन, आस्क मी व्हेन वी स्टार्ट चैप्टर 2। अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं। व्हाट अबाउट वेटेज? वेटेज यहाँ पे लिखा हुआ है, परसेंटेज वाइज लिखा हुआ है। उस आई थिंक आई डोंट हैव टू टेल यू दैट यू कैन गो थ्रू इट। सो यहाँ पे जो पूछ रहे हैं
आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, दैट इज ऑल्सो फीडबैक. ओके. थर्ड इज बैरियर टू कम्युनिकेशन. जैसे अभी किसी ने लिखा है रनिंग आउट ऑफ टाइम. ऐसे कैसे हो सकता है? ओके. आई में आप लोग वहीं पे रहना, शायद मीटिंग फिर से स्टार्ट हो सकता है. नेक्स्ट इज बैरियर टू कम्युनिकेशन. ऑब्स्टिकल्स, जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं, फिजिकल बैरियर. अभी हमारा कैसा बैरियर है? फिजिकल बैरियर. आप यहाँ पे नहीं आ सकते. हाँ, मैं तो आऊंगी भी नहीं. आप यहाँ पे नहीं आ सकते. सो दैट इज द फिजिकल. लैंग्वेज बैरियर. सम पीपल विल से ओ आई डोंट नो इंग्लिश, पर 12th में इतने अच्छे मार्क आए होंगे इंग्लिश में, फिर वो आई डोंट नो इंग्लिश. नहीं, वो बैरियर है यहाँ पे, इट्स इन योर माइंड. फिर कल्चरल बैरियर. कुछ लोग अलग अलग कल्चर से आते होंगे. कुछ लोग राजकोट से आते हैं, वहाँ का कल्चर अलग होगा, गांधीनगर का कल्चर अलग होगा, अहमदाबाद का कल्चर अलग होगा, साउथ का कल्चर अलग होगा. कल्चरल बैरियर्स. ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर. एलडीआरपी में अलग कल्चर होगा, जब आप जॉब के लिए जाओगे तब अलग कल्चर होगा. वो सब वी आर गोइंग टू. और इसको ओवरकम कैसे करना है? बैरियर तो पता चल गया, पर इसको ओवरकम भी कैसे करना है, वी विल बी लर्निंग इन चैप्टर 3. फोर्थ वन, रोल ऑफ बॉडी लैंग्वेज एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. मुझे ये टॉपिक बहुत पसंद है, रोल ऑफ बॉडी लैंग्वेज. आपको बॉडी लैंग्वेज कैसे रीड करना है, डिटेल में नहीं जाऊंगी, पर हाउ टू रीड द बॉडी लैंग्वेज एंड हाउ टू इंटरप्रेट द बॉडी लैंग्वेज, दैट विल बी taught in chapter 4. Next is presentation skills. Again, one of the important topics, presentation skills. अभी मैं जो कर रही हूँ, that is also presentation. अभी आप वहां से कुछ बोलोगे, that is also presentation skills. मम्मी पापा से बात कर रहे हो, that is also presentation. भाई बहन से बात कर रहे हो, that is also presentation. फ्रेंड के साथ बातें कर रहे हो, that is also, it is presentation. Different ways of presentation. कुछ myth भी है, you know, कुछ लोग ऐसे मान लेते हैं myth प्रेजेंटेशन के बारे में, वो भी हम देख लेंगे. फिर प्रेजेंटेशन में क्या यूज कर सकते हैं, क्या नहीं यूज करते हैं. जैसे मैं अभी यूज कर रही हूँ, वर्ड यूज कर रही हूँ, सो दैट इज अ एड. एड मतलब वो बीमारी वाला एड नहीं है. एड मतलब साथी. मतलब मुझे प्रेजेंटेशन करने के लिए अभी मेरा साथी कौन है? वर्ड, जिसमें मैं आपको दिखा के, आपको भी दिखाई दे रहा है और मुझे भी दिखा रहा है. किसी ने मुझे जवाब दिया, हार्दिक ने मुझे, यस, हेल्प. मुझे एड कर रहा है, हेल्प कर रहा है, मुझे डिलीवरी करने के लिए हेल्प कर रहा है. सो दैट इज चैप्टर 5. चैप्टर 6, listening skills at workplace, which is important. Listening skills at workplace. LDRP is your workplace too. जहां पे आप अभी LDRP में हो, LDRP is also your workplace. Chapter 7, technology and media. टेक्नोलॉजी में तो आप माहिर हैं, IT हो, मीडिया. So we are going to go, we are going to touch base. हम एकदम डिटेल में नहीं जाने वाले हैं, but we will going to touch base. तो chapter 1 to 7, chapter 1 to 7 is your mid semester syllabus. This is your mid semester syllabus. कैसे होगा, कब होगा, you don't have to worry. या तो आपके डिपार्टमेंट या तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे. ओके. So your mid semester portion is from chapter 1 to 7. Any questions on this? Mid semester exam कब होगा मत पूछना. I've already answered that. Okay. अब इसमें मैं थोड़ा नीचे जा रही हूँ. चैप्टर 13, ग्रामर एंड वोकैबुलरी. ग्रामर एंड वोकैबुलरी. ये एक, अभी आप लोगों ने सोचा होगा कि दिमाग में आया है कि मैम आपने तो बोला कि ग्रामर नहीं होगा. हाँ, नहीं होगा, पर इसमें बिजनेस इंग्लिश होगा. थिंग्स अराउंड द ऑफिस, बिजनेस इंग्लिश, बिजनेस वोकैबुलरी, ये सब जो हम पढ़ाने नहीं वाले, जो हम पढ़ाने नहीं वाले, ये आपको खुद पढ़ना है. ये आपको खुद पढ़ना है. दिस इज कॉल्ड सेल्फ स्टडी. आप अभी कॉलेज में आ गए तो ये नया नया टर्म आपको मिलेगा. सो देयर इज समथिंग कॉल्ड सेल्फ स्टडी. पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हम सॉल्व नहीं करेंगे. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम वी विल सॉल्व. तो चैप्टर 13 भी आपको मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में आएगा. एनी क्वेश्चंस?
एनी क्वेश्चंस अभी तक? क्योंकि मैं बाकी का नेक्स्ट सेशन में, प्लीज जूम द वर्ड. ओके, आई जूम द वर्ड. ओके, कहाँ गया? ओके, ठीक है. इज इट ओके नाउ? आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है. आई विल अपलोड इट. कैन वी गेट दिस सिलेबस पीडीएफ? यस, मैं भेजूंगी इसको. मैं YouTube में अपलोड करूंगी. So you don't have to worry about it. Actually, we are waiting for your department to create a drive. If your department does not create a drive, I will create my own drive and I'll share it with you. Okay? Any other question? अभी मैं क्या करती हूँ, मैं एक फीडबैक फॉर्म शेयर कर देती हूँ जस्ट इन केस मेरा नेट कनेक्शन चला जाएगा तो. लोचा अटेंडेंस. ओके, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ये भर देना. ये थियोरी के लिए है. सो इसको भर देना. अगर आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है तो, एक्सक्यूज मी मैम, डू यू रिकॉर्ड ऑल द लेक्चर्स? Akshit, I may not record all the lectures. However, मैं chapter wise recorded वीडियो आपको दूंगी. यहाँ पे ये मेरा रिकॉर्डेड नहीं था. दैट इज व्हाई आई हैव रिकॉर्डेड. बट ऑल द चैप्टर्स आई विल नॉट बी रिकॉर्डिंग. ये भेजा ना मैंने फीडबैक को. मैंने किसको भेजा? अच्छा, आकाश को भेजा. सॉरी एवरीवन. ओके, दिस इज फीडबैक फॉर्म. तो मैं ऐसा समझ रही हूँ कि मैं वीडियोस रिकॉर्ड करके आपको वो लिंक दे दूंगी. सो आई थिंक दैट इज बेटर. उसमें आपका पीपीटी भी आ जाएगा और सब कुछ आ जाएगा. और यहाँ पे हम एक दूसरे से बात करेंगे. क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं समझ में आया, उसको हम डिटेल में लेंगे. डज दैट साउंड ओके विथ एवरीवन? कि मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो पहले से दे दूं, आप उसको देख लीजिए जब टाइम मिले तब. क्योंकि काफ़ी डज द मीटिंग लिंक एंड द पास आर सेम फॉर 10-15 क्लास. 10-15 को किसका है? मेरा ही है. 10 वेदांत. हाँ, it is not same. Does the meeting link and passcode for the 10-15 class same? No, it is not same. अगर मेरा नहीं है तो सेम नहीं है. ये जो लिंक आज जो आप लिंक में लिंक से ज्वाइन हुए हैं, that is only for my class. Vedant, does that answer your question? Okay. All right. अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो ये मीटिंग हम एंड कर रहे हैं. आई एम इस तरह का ग्राफ कैसे ट्रेस करेंगे? तो सिंपल ग्राफ है. इसका ग्राफ कैसे ट्रेस करेंगे और कैसे क्वेश्चन पे आएगा. So this